Everyone, good morning. Today we are going to speak about or read about the story Homecoming, which is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, he was born in 1861 and he was alive till 1941. He was a Bengali poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer and painter who won the Nobel Prize for Literature in 1913. In The Homecoming, we have the universal themes of adolescence, neglect, responsibility, love, and isolation. The story is narrated in the third person by an unnamed narrator. It is the story of Pothik Chakraborty, whose boyish mischief leads to his being sent away to Kolkata to live with his uncle. Tagore pierces the heart of the reader with his depiction of homesickness, rejection, and isolation. The boy's longing to return to the wide open spaces of his village home is metaphorically granted in the poignant closing lines of the story. Both the title and the last line echo this longing. So, this talks about the story of Pothik Chakraborty. Because of his mischievous behavior, he was sent to Kolkata to stay with his uncle, and from there, when he started missing his mom, when he started missing his friends of village and the village surroundings, how he felt and what all he went through, this story talks about all that, and so on and so forth, which we will find out as we go ahead and read this and try and understand it with me. Okay, so let's go ahead and do this. Thank you. Okay, so Pothik Chakraborty was ringleader among the boys of the village. तो पथिक चक्रवर्ती जो मेन कैरेक्टर है वो क्या था, वो अपने ग्रुप में लीडर था. अ न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक बहुत नॉटी टाइप का एक आइडिया आया. क्या आइडिया था? देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मस्ट फॉर ए बोट. तो वहाँ पे एक वुड का लॉग था जो रखा हुआ था बोट का मस्ट बनाने के लिए. मस्ट होता है पोल टाइप का बोट में, जिसमें सेल हम लोग लगाते हैं ताकि बोट आगे या पीछे जा सके या डायरेक्शन चेंज कर सके. तो वो बनाने के लिए मस्ट बनाने के लिए वहाँ पे लॉग रखा हुआ था नदी के किनारे पे. तो उसके दिमाग में आइडिया, चलो हम लोग सब मिलके वो लॉग को रोल अवे कर देंगे कहीं दूसरी जगह पे. तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका ओनर आके ढूंढेगा तो वो परेशान हो जाएगा कि कहाँ गया लॉग, और वो बहुत गुस्सा हो जाएगा. तो ये सब वो लोग पथिक चक्रवर्ती बीइंग ए बॉय, ही विल एंड हिज ग्रुप विल एंजॉय दैट. तो ये सब उसका प्लान था. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. तो क्या हुआ, सब लोग उसके साथ जितने भी लड़के थे सब लोगों ने बोला ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो करते. तो जैसे ही उसने ये आइडिया सुनाया तो सब लोग बोले चलो करते हैं. सब लोग उसका प्रपोजल को दे एग्रीड टू इट, और सब लोगों ने उसका सपोर्ट किया, चलो हम लोग करेंगे. बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, मक्खन, पथिक्स younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. तो जैसे ही वो लोग ये करने के लिए रेडी हुए तभी पथिक का एक छोटा भाई था, उसका नाम क्या था, मक्खन. तो मक्खन ने क्या किया, मक्खन आके जो लॉग वो लोग रोल अवे करना चाहते थे उसके ऊपर बैठ गया. ऐसे बैठा जैसे उसको मतलब कुछ पता ही नहीं है. तो एक लड़का, सारे लड़के लोग जो लॉग को अभी मतलब फोर्सफुली रोल अवे करने वाले, वो लोग सब अचानक से पजल्ड हो गए, ये क्या हुआ, अभी तो ये आके बैठ गया, ये क्या, उसको पता नहीं हम लोग अभी इसको रोल अवे करेंगे कि कुछ करेंगे. तो उसको बोला, धीरे से ही बोला कि चलो निकलो यहाँ से, उठ के जाओ. लेकिन पति का जो भाई मकान था उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था.
वो बैठा ही था, मतलब उसको ऐसा वो ऐसा दिखाना चाहता था और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और वो उसको सुना ही नहीं दे रहा है. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. तो वो ऐसा दिखाना चाहता था कि एक मेडिटेशन कर रहा है, फिलोसोफर है जो मेडिटेशन पे बैठा हुआ है. क्यों मेडिटेशन पे बैठा हुआ है? मेडिटेशन कर रहा है कि ये सब गेम खेल के फ़ायदा क्या है, तो ये सब चीज़ तो यूजलेस है. पथिक वॉज फ्यूरियस, तो पथिक को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, पथिक फ्यूरियस हो गया. तो उसने मक्खन को बुलाया. मक्खन, ही क्राइड, तो मक्खन को बोला, मक्खन इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस टाइम दिस मिनट आई विल ट्रैश यू. तो अगर तुम यहाँ से अभी नहीं उतरते हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, मारूंगा. मक्खन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजिशन. तो मक्खन जो अब वहाँ पे बैठा हुआ था एक फिलोसोफर के जैसा, उसने किया क्या, उसने और अच्छे से बैठ गया वो. नाउ इफ पथिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट. तो अभी पथिक तो बोल दिया सबके सामने, उसके दोस्त लोगों के सामने कि तू अगर नहीं उठा यहाँ से तो मैं तुझे मारूंगा. लेकिन अगर उसको अपना दोस्तों के सामने उसका रिस्पेक्ट बचाना है तो वो करना ही पड़ेगा, उसको मारना ही पड़ेगा मक्खन को. बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस. तो करेज जब, लेकिन वो मार नहीं पाया अपने छोटे भाई को, मक्खन को मार नहीं पाया. हिज फर्टाइल ब्रेन however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement. तो उसके दिमाग में और एक आइडिया आया, जो आइडिया उसके भाई को भी, उसका भाई को भी वहाँ से उठाएगा और उसके जितने फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स इन द सेंस उसका जो फ्रेंड का ग्रुप है, उस ग्रुप में जो लोग उसको मतलब सोचते हैं वो लीडर है, उनके सामने उसका इज्जत और बढ़ेगा. और उसको क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बिकॉज अगर उसको रोल ओवर करते हैं, मतलब रोल ओवर करते हैं लॉक को, या तो फिर क्या बोलते हैं मक्खन को कुछ करता है, तो ऑब्वियसली वो एडेड फन होगा. तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया है. तो क्या आइडिया था, लेट्स फाइंड आउट. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. Makhan heard the order and made it a point of honor to stick on. But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. तो क्या हुआ, तो उसने बोला, सबको बोला कि चलो हम लोग रोल ओवर करेंगे. तो जैसे उसने कमांड दिया रोल ओवर शुरू हुआ. लेकिन मक्खन जो था उसने सुना था उसका भाई बोल रहा है इसको रोल ओवर करो, इस लॉक को, मतलब इसको गिराओ, लॉक को फोर्सफुली एक जगह से दूसरे पे लेके जाओ. लेकिन मक्खन वहाँ से हिला भी नहीं. उसको ऐसा लगा अगर मैं यहाँ से हिल गया तो मैं सबके सामने मैं छोटा हो जाऊँगा, तो मैं नहीं हिलूँगा. लेकिन उसको ये नहीं दिखा कि अगर ये ब्लॉग रोल ओवर होता है तो ऑब्वियसली मैं भी इसके साथ डेंजरसली रोल ओवर होऊंगा, तो मुझे भी चोट लग सकता है. लेकिन मक्खन ने वो सब ओवरलुक किया, इग्नोर किया. द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग with all their might, calling out 1 2 3 go. At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory and all. तो जैसे ही बॉयज़ लोग सब बच्चों ने सब जैसे ही उनके सब लोग मिलके 1 2 3 करके जैसे ही उसको पुश किया, तो क्या हुआ, मक्खन जो ऊपर बैठा हुआ था अभी तक लॉक के, वो भी लॉक के साथ चला गया. और उसका जो फिलॉसफी था वो भी लॉक के साथ बह गया. मतलब बह नहीं गया, मतलब उसके साथ रोल ओवर हो गया. और उसका जो प्राइड था वो भी उसके साथ चला गया, उसके फिलॉसफी के साथ और उसके साथ. तो उसके बाद क्या हुआ, ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ हॉरस विद डिलाइट बट पथिक वॉज ए लिटिल फ्राइटेन. तो बाकी सब लोगों को बहुत मज़ा आया जैसे ही रोल ओवर हुआ लॉग. लेकिन पथिक बहुत परेशान हो गया. ही न्यू वॉट वॉज कमिंग. तो क्योंकि उसको पता था अभी तो गिरा है, अभी उसको लगा होगा चोट, तो ऑब्वियसली मुझे तो
डांट पड़नी है, या तो फिर वो आके कुछ करेगा या तो मम्मी करेगी. एंड श्योर इनफ मक्खन रोज फ्रॉम मदर अर्थ blind as fate and screaming like the furies. He rushed at Pathik and scratched his face and beat him and kicked him and then went crying home. The first act of the drama was over. तो क्या हुआ वहाँ पे, जैसा मक्खन ने सोचा था वो डर रहा था वैसा ही हुआ, जैसा पथिक सोचा था वैसा ही हुआ. मक्खन ऑब्वियसली मड फ्लैट था, वो नदी के जो किनारे होते हैं वो वहाँ पे मड होता है, तो मड फ्लैट में वो पूरा एकदम पूरा मडी हो गया पूरा. उसके बाद वो वहाँ से उठ के पथिक के फेस को स्क्रैच किया, उसको घुसा दिया, लात मारा और फिर रोते रोते घर वापस चला गया. तो घर वापस चला गया. लेकिन here you will have to understand that how beautifully Rabindranath Tagore told this, that the first act of the drama was over. तो ये जो चल रहा था ना वो obviously ड्रामे से थोड़ी ना कम था. तो ये जो ड्रामा फर्स्ट पार्ट था कि ऐसा हुआ, वो obviously एक्ट था एक ड्रामे का, और उसके बाद और ड्रामा बाकी था. तो he has beautifully written it and said it that first act of the drama was over. तो बाकी अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि, और या तो फिर आप लोगों को समझना चाहिए कि और भी ड्रामा बाकी है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है. ओके, सो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट वन. पथिक wiped his face and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. तो पथिक अभी क्या हुआ, वो अपने फेस को वाइप किया और बैठ गया एक संकन बार्ज पे. संकन बार्ज इज समथिंग लाइक ए फ्लैट बोट जो आधा डूब चुका है और उसमें वो बैठा था. और बैठ के वो घास निकाला और घास को चू करने लगा. तो तभी एक बोट में से एक मिडल एज एक आदमी उतरा और उतर के उसको पूछा कि चक्रवर्ती का घर कहाँ है. तो चक्रवर्ती का घर कहाँ है उसको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, बट पथिक ने क्या किया, लेट्स सी व्हाट पथिक डिड. पथिक वेंट ऑन चूइंग द ग्रास एंड सेड ओवर देयर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन. ही swung his legs to and fro on the side of the barge and said, go and find out, and continued to chew the grass as before. तो तभी पथिक को जब पूछा कि चक्रवर्ती इसका घर कहाँ है, तब उसने ऐसा एक आंसर दिया, ओवर देयर, मतलब ऐसे दिखाया कि किसी को समझ नहीं आएगा कौन से डायरेक्शन है, भाई तुम क्या दिखा रहे हो, यहाँ इस साइड में है कि उससे ओवर देयर तो यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है. तो उसको समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो डायरेक्शन ही ऐसा था. तो समझ में नहीं आया, तब उसने फिर से पूछा कि कहाँ पे. तो पथिक जो बैठा था वो अपना पैर हिलाते हिलाते ही सेड खुद ही जाके ढूंढ लो, और फिर वो घास वो चू करने लगा. बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड पथिक हिज मदर वांटेड हिम. पथिक रिफ्यूज्ड टू मूव, but the servant was the master on this occasion. He took Pathik up roughly and carried him, kicking and struggling in impotent rage. So उसने क्या किया, तभी जब ये सब हो रहा था तभी पथिक के घर से एक सर्वेंट आया. उसने पथिक को बोला कि चलो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है फॉर द सेकेंड एक्ट ऑफ द ड्रामा और वॉट एवर. तो पथिक बोला कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आना. वो ऑब्वियसली वो क्यों आएगा, क्योंकि उसको तो डर लग रहा है, अगर मैं जाऊंगा पता नहीं क्या हुआ होगा, मम्मी को मक्खन ने क्या बोला, मुझे तो पड़ेगी. तो ऑब्वियसली वो डरा हुआ था, बोले नहीं मुझे नहीं आना है. तो जो सर्वेंट था उसको पता था पति कैसा है, लेकिन वो भी कम नहीं था. उसने क्या किया, पति को गोदी में उठा के ऐसे ही लेके चला जा रहा है, और पति का हाथ पैर मार रहा है कि कहीं से भी वो निकल जाए. लेकिन सर्वेंट बहुत इज़ वेरी clever in that case. He just held him and took him along with him. तो ये था, उसको लेके चला गया. When Pathik came into the house, his mother saw him. तो जब पथिक अंदर आया तो उसकी मम्मी ने उसको देखा.
शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, सो यू हैव बीन हिटिंग मक्खन अगेन। तो उसको देखा और गुस्से में पूछी कि तू फिर मक्खन को मार रहा है। पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, नो आई हैवेंट, हु टोल्ड यू दैट। तो पथिक ने बोला नहीं तो, मैं तो नहीं मारा, किसने बोला आपको। हिज मदर शाउटेड, डोंट टेल लाइज, यू हैव, झूठ मत बोलो, तुम्हें तो आज देख लेना। पथिक सेड सडनली, आई टेल यू आई हैवेंट, यू आस्क मक्खन, मैंने बोला ना आपको, मैंने उसको नहीं मारा, आप मक्खन से पूछ लो। बट मक्खन थॉट it best to stick to his previous statement. He said, yes mother, Pathik did hit me. तो मक्खन को जैसे ही बोला मम्मी के सामने कि आप मक्खन से पूछ लो मैंने उसको मारा कि नहीं, तभी मक्खन बोला कि नहीं, अगर मैं अभी चेंज करूँगा पहले तो इसका मतलब क्या था। मक्खन आके बोला कि मुझे भाई ने मारा पीटा, तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी गुस्सा होगी। तो अभी क्या हुआ, मक्खन बोला कि नहीं, मैं अगर अभी बोलूँगा कि मैं चेंज करूँगा, पहले बोला था मारा था, अभी अगर बोलूँ नहीं मारा तो उल्टा मुझे मार मिलेगी। तो उसने बोला नहीं, मुझे मारा था, पथिक ने मुझे मारा था। तो उसकी मम्मी चिल्लाई, तुम मुझे नहीं, उसके तो तब क्या हुआ, पथिक्स पेशेंस, जब मक्खन ने मम्मी के सामने बोला हाँ मम्मी मुझे उसने मारा, तब पथिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, तब उसका पेशेंस ख़त्म हो गया। ही कुड नॉट हेयर दिस इनजस्टिस, तो उसको लगा कि अरे ये तो झूठ बोल के मुझे मार खिलवाना चाहता है, तो मुझे ये मतलब पथिक को ऐसा लगा कि ये तो गलत है, ये गलत हो रहा है। ही रश्ड एट मक्खन and hammered him with blows. Take that, he cried, and take that, and that for telling lies. तो मक्खन के पास गया, लगाया उसको, लात घुसा और बोला कि ये ले, तू बोला था ना मैंने मारा, तो ये देख कैसा लग रहा है, ले, बोल के उसको मारा। तभी मम्मी आ गई। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Pathik away. तो मक्खन के साइड पे आ गई मम्मी, ऑब्वियसली छोटा जो होता है उसके साइड में चले जाते हैं, और पथिक को खींच के वहाँ से निकाल लिया और उसको मारने लगे, बीटिंग हिम विद हर हैंड्स। व्हेन पथिक पुश्ड हर असाइड शी शाउटेड आउट, व्हाट यू लिटिल विलन, वुड यू हिट योर ओन मॉम। तो जब उसको मारने लगी उसकी मम्मी अपने हाथों से, तब पथिक ने क्या किया, पुश कर दिया उसकी मम्मी को। तो जैसे ही पुश किया और गुस्सा हो गई, बोलने लगी क्या तू मुझे मारेगा, अभी अपनी मम्मी के ऊपर हाथ उठाएगा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर that the grey-haired stranger arrived. He asked what the matter was. Pathik looked sheepish and ashamed. तभी वो जो आदमी आया था, याद है, वो जो बोट से उतरा था और जिसने पूछा था चक्रवर्ती इसका घर कहाँ है, जिसको पथिक ने बोला था ओवर देयर, वो घर के सामने आया पूछ के कि चक्रवर्ती इसका घर कहाँ है। सामने आया और पूछने लगा क्या हुआ। तो जैसे ही उसको पथिक ने देखा, क्योंकि उसको पथिक ने ठीक से आंसर नहीं दिया था, तो जैसे ही उसको पथिक ने देखा और उसने तो सब कुछ देख लिया, पथिक मार खा रहा है, तो पथिक को थोड़ा ही वॉज फीलिंग अशेम्ड और शीपिश, उसको मतलब ऐसा लग रहा था अरे इस आदमी ने मुझे देख लिया, अरे मेरा इज्जत सब चला गया। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज। लेकिन जब उसकी मम्मी ने उस आदमी को देखा, तब उसकी मम्मी का जो एंगर था, मतलब जितना पथिक को मारने के लिए जा रही थी और डांट रही थी, अचानक से सब कुछ गायब हो गया और उसके चेहरे पे एक सरप्राइज का लुक आ गया। तो अरे आप, फॉर शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। तो जो वो आदमी था वो एक्चुअली पति का मामा था, उसके मम्मी का भाई था, दादा था। तो उसको देख के बोलने लगी अरे दादा तू आप कब आए, कहाँ से आए। As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay. His sister had lost her husband while he was in Bombay. Bishwember, तो उस आदमी का नाम था Bishwember. Bishwember had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. तो पति के मम्मी का जब शादी हुआ,
उसके शादी के बाद पथिक की मम्मी यहाँ पे चली आई विलेज पे, और पथिक का जो पथिक के जो मामा थे वो मुंबई चले गए बिज़नेस सेटल करने के लिए। अभी वो मुंबई से वापस आए कलकत्ता में, और कलकत्ता में जैसे ही वो घर पे पहुँचे उसने पूछा कि मेरी बहन कैसी है, तो सब ने बताया होगा कि ठीक है आपका बहन का तो हस्बैंड का डेथ हो गया, तो वो वहाँ पे रहती है। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करके वो सीधा यहाँ पे चला आया। The next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boys. He was told by his sister that Pathik was a perpetual nuisance. He was lazy, disobedient, and wild. But Makhan was as good as gold, as quiet as lamb, and very fond of reading. Bishambar kindly offered to take Pathik off his sister's hands and educate him with his own children in Calcutta. The widowed mother readily agreed. When his uncle asked Pathik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds, and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. तो अभी क्या हुआ, कुछ दिन बहुत अच्छे से गया। उसके बाद मामा जो पति के मम्मी का भाई था, उन्होंने पूछा कि बच्चे को तुम कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे तुम मैनेज कर रहे हो सब कुछ, अभी तो हस्बैंड नहीं है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, पथिक तो बहुत मतलब वो जानबूझ के ऐसा करता है, वो हमेशा डिसोबीडियंट है, बात नहीं सुनता है, बैक आंसर करता है। और दूसरे साइड पे मक्खन के बारे में बोल रहा था, मक्खन तो इतना अच्छा है, गोल्ड की तरह में, सोने की तरह है मक्खन, लैम के जैसा है, कुछ ज़्यादा बात नहीं करता। और क्या बोला, हाँ, और वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में। तो उसके पति के मामा ने जब ये बात सुना तो उन्होंने क्या बोला, उनका नाम था विशंबर। विशंबर ने क्या बोला, ठीक है अगर ऐसा ही है तो मैं पथिक को अपने साथ कलकत्ता लेके जाता हूँ और वहाँ पे मेरे बच्चों के साथ उसको स्कूल में डाल दूँगा, वो पढ़ेगा। तो ऑब्वियसली एक मम्मी के लिए जो अभी अपने बच्चे को लेके इतना परेशान है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भाई के पास चला जाएगा, एक गार्जियन होगा, तो वो शहर में स्कूल में पढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा। तो वो झट से राजी हो गई। तो राजी जैसे ही हुआ तो मामा ने पथिक को पूछा कि पथिक तुम्हें जाना है मेरे साथ कलकत्ता। पथिक एक बार भी सोचा नहीं, वो बस रेडी था जाने के लिए। वो बोला हाँ क्यों नहीं, मैं जाऊँगा। तो उसका एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि मतलब सबको लगा कि हाँ यार वो उसको जाना है। और पथिक का क्या था, उसको देखना था कलकत्ता कैसा है, क्योंकि एक डिफरेंट सिटी है। तो वो सुनता था शायद कलकत्ता के बारे में, लेकिन कभी तो देखा नहीं। तो उसके नया जगह देखने के लिए किसको नहीं अच्छा लगता, तो उसको वो वैसा था। और यहाँ पे उसको मार पड़ रहा था, मम्मी डांट रही थी, तो उसको भी थोड़ा वो चेंज चाहिए होता था, मतलब चेंज चाहिए होगा। तो इसीलिए वो शायद बोल रहा था कि ठीक है मैं जाऊँगा। It was an immense relief to the mother to get rid of Pathik. तो यहाँ पे I want you guys to pay attention here and understand, get rid of Pathik. तो get rid of Pathik मतलब इस पथिक इतना मतलब नॉटी था, इतना डिसोबीडियंट था, मतलब कुछ नहीं सुनता था मम्मी के बारे में, मम्मी जो भी बोलती थी, और इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि उसकी मम्मी उससे बस जान छुड़वाना चाहती थी, चलो किसी तरह तो वो मुझसे छूटे। तो इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, गेट रिड ऑफ हिम। शी हैड ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो उसको मतलब ऐसा था कि ये वो राजी उसकी मम्मी, क्योंकि पति कितना डिसोबीडियंट था कि उस पति के ऊपर उनको बहुत गुस्सा था, और लेकिन भाई के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो दोनों भाई बहुत अच्छे एक दूसरे को प्यार करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई लड़ता है, फिर भी एक भाई दूसरे भाई को प्यार तो करेगा ही। शी वॉज इन ए डेली फियर दैट ही वुड ईदर ड्राउन मक्खन समडे इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर। तो उनको क्या था
कि अगर पथिक यहाँ पे रहेगा तो मक्खन का तो हो गया, मक्खन को किसी ना किसी दिन मक्खन को मारेगा, नहीं तो मक्खन को किसी डेंजर में डालेगा, या तो फिर मक्खन का सर फोड़ देगा। वो पथिक इतना नॉटी था। तो उन्होंने सोचा एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट, तो उन्हें वो ये भी सोच रही थी, मम्मी है आखिर, तो माँ ये भी सोचती है कि अगर ये रहा तो मक्खन को तो बहुत मारेगा, मक्खन का प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी सोच रही थी कि अरे पथिक तो एक बार भी मना नहीं किया यहाँ से जाने के लिए, तो ये चीज़ तो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कोई क्यों अचानक से राज़ी हो जाएगा कि जाने के लिए, चलो मैं भी चलूँगा। सो एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी पथिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। तो उनको ये कुछ अच्छा नहीं लगा कि पथिक भी जाना चाह रहा है, बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। पथिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. He banqueted to Makhan in perpetuity, his fishing rod, his big kite, and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. तो पथिक हमेशा जब उसको, मतलब जब ये सब सेटल हो गया, ठीक है पथिक जा रहा है कलकत्ता उसके मामा के साथ, तब वो बहुत खुश था और उसके मामा को हमेशा पूछता रहता, मामा हम लोग कब जाएंगे, चलो ना कब जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि कोई इसको, दिस इज़ ए फ्रेज, ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट। तो जैसे कोई पिन उसको चुभ रहा है नीचे से, और वो इतना एक्साइटेड था कि बार बार वो मामा के पास जाके ये सब पूछता कब जाएंगे। और वो इतना ही एक्साइटेड था कि वो इतना जेनरस हो गया कि उसका वो फिशिंग रॉड जो था जिससे मछली पकड़ते, वो रॉड, उसका बड़ा वाला काइट, और उसका जो मार्बल्स थे, वो सब कुछ किसको दिया, मक्खन को दे दिया। तो यहाँ से हमें वी अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो दैट पथिक्स कैरेक्टर वॉज क्वाइट काइंड, generous, and he was not that bad. He was just a boy of maybe mere 14 years of age who was little naughty. That's all we need to understand. But then he has a very good side of himself, of being kind, being generous, and being a good brother as well. So when they reached Calcutta, Pathik made the acquaintances of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking on anyone else, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Bishambhar should really have thought twice before committing such an indiscretion. तो जैसे जैसे दिन आया जब पथिक कलकत्ता गया, और फर्स्ट टाइम तभी पथिक अपने मामी से मिला, लेकिन मामी को अच्छा नहीं लगा पथिक वहाँ पे गया, क्योंकि उनको पथिक के मामा का ऑलरेडी 3 बेटा था। तो 3 बेटे को देख के मामी और एक 14 साल के लड़के को देखेंगी तो ऑब्वियसली उनको भी ठीक नहीं लग रहा था, मतलब उसको सब कुछ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। और उसके बाद वो भी एक विलेज से आया हो, गांव से आया वो लड़का, पता नहीं कैसा होगा। तो शी वॉज नो वेयर प्लीज टू सी हिम, और उतना वेलकमिंग भी नहीं थी, मतलब वेलकमिंग तो थी नहीं। और वो ऐसा बोल रही थी कि ये सब के पीछे बिशंबर ने डिसीजन लिया, और वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन लिया, उसने ठीक डिसीजन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपको मुझे पूछ के लाना चाहिए था, मेरे घर में वो रहेगा, अभी मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है तो कैसे। तो शी वॉज काइंड ऑफ saying that it was all Bishambhar's fault that Bishambhar took this decision. तो यहाँ तक this is the part where we will do, and then in the second part I guess we will do the rest of it. Thank you guys.